Today we are talking about Ellipsis of India. It's from the lessons of class 10. There are three lessons. Ellipsis of India. Ellipsis means glance, ek nazar. So from Ellipsis of India, we are talking about lessons that is a part that is a breaker from Goa is written by Lucio Rodriguez. Lucio Rodriguez. Lucio Rodriguez. Okay. A breaker from Goa. This story is on the topic of bread. Bread of Goa, which is very famous in the Portuguese time and still exists in our country. And this lesson has been made what is the importance of breaker and how the bread is still be exist in the world, whereas the the Portuguese persons is not in this state. So let's begin the lessons without delay. This chapters is discuss about narrator a pen portrait. Pen portrait means image of Gaon village. A traditional village, baker who still has an important place in its society. This chapter illustrates that the old Portuguese tradition still exists within the state. पोर्तुगीज अभी भी हमारे राज्य में है. इतने साल पहले हमारे पास हुआ करते थे, फिर भी उनके जो एक्टिविटीज़ है स्टिल एग्जिस्ट. द ट्रेडिशनल केक्स एंड ब्रेड break during important occasion and festival, that making an important aspect of the Gaon culture. So this is the lessons of a breaker from Goa. वहाँ के गांव कल्चर कैसे हैं? शादी ब्याह कुछ भी हो, कोई भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हो, वहाँ पर ब्रेड होना बहुत ही ज़रूरी था. लेट्स गो बिगिन. This part of the chapter is a pen portrait of a traditional Gaon village breaker or trader who still has an important place in Gaon culture. Here is written Padder. Padder who was selling the bread. यहाँ पर ट्रेडिशनल है, वहाँ का जो कल्चर है उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं. ठीक है, इसको ट्रेडिशनल बोलते हैं. ठीक है, ये जो गांव है इनमें बेकर जो रोटी बनाते हैं और बेचते हैं, इन लोगों को पेडर कहा जाता है अभी भी ये गोवा में. So when they were in the state of Goa, the Portuguese, what they were doing, let's go begin. The old Portuguese days in Goa. In the old days of Goa, the Portuguese were very famous for their loops of bread. Loops of bread means they were making the bread and sell the bread to sustain and survive their life. That is their main occupations.
That's why here is very famous. The Portuguese left Goa a long time ago, but the traditional baker and their furnace machine for baking is still exists there. What is there? The traditional baker. Those who are making the breads and their furnace. Where the bread was preparing, the tray, the fire, that is called their furnace. Here is the left. Here is written the left. पोर्तुगीज लेफ्ट, पोर्तुगीज चले गए, फिर भी इन लोगों का जो ट्रेडिशनल कल्चर है और फाइनल कल्चर अभी भी गोवा में एग्जिस्ट है. द मिक्सचर मोल्डर. मिक्सचर मीन्स जिसको ग्राइंडर बोलते हैं. मोल्डर जिसमें ट्रे होता है, जिसमें रख के उसको फूला जाता है, फूल जाता है. थोड़ा सा देंगे मैदा का, आप लोग देखे होंगे, अब फूल जाएगा एकदम. ठीक है. द पीपल हु बेक द लूप्स स्टिल एग्जिस्ट कैरिंग ऑन देयर बिजनेस ऑफ बेकिंग. सो जो ये सब बनाते हैं लूप्स, ये आज उनका क्या हो गया, आज बिजनेस हो गया. इससे पहले खाने के लिए बनाया जाता था, धीरे धीरे वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है. द सेकेंड ऑफ द बेकर्स बैम्बो इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. हेयर इज बेकर्स बैम्बो. व्हाट इज सेज दिस बेकर बैम्बो. कि पहले जब बेकर लोग सुबह उठते थे, उसके बाद हमारे पास तो अभी तो हुइशल होता है बजाने के लिए. किसी को हम लोग आवाज़ देते हैं तो उससे आवाज़ से कोई हमारे सामने इशारा करके, पहले इस तरह एक बैम्बो के एक स्टिक हुआ करता था, उसको चार फाड़ दिया जाता है और उसको ऐसे ऐसे करके ये करने से साउंड होता है. ठीक है. यू कैन ऑल्सो डू दिस. So that is the here is the sound of the breaker bamboo in the morning. हाँ, आवाज़ आता है सुबह से उठ के, पारोटी ले लो, पारोटी ले लो, पारोटी ले लो. अभी हम लोग सुनते हैं सब्जी ले लो, सब्जी ले लो. उस जगह आप गोवा में अगर जाएंगे अभी भी पारोटी ले लो, पारोटी ले लो, सुबह सुबह आपको सुनाई देगी. दिस बेगर आर स्टिल नोन एज पैडर. यही कहाँ का ये जो पैडर, ये लोग कहाँ पर है, गोवा में. ये जो सेल करते हैं ब्रेड को, उसको पैडर कहा जाता है. दे सेल लाइक दिस. लेके जाएंगे एक ये में झोला में हो, चाहे बाकेट में हो, चल बास्केट में हो, कुछ भी लेके वे लोग साउंड करते हैं और सेल करते हैं. यस, लेट्स अनदर टॉपिक. द ट्रेडिशनल ब्रेकर ड्यूरिंग द नैरेटर्स चाइल्डहुड. So narrator here describe about the childhood where he spent the lots of time in the state of Goa, how and what he had watched, what he had watched, what he observed in his childhood record. The narrator recall his childhood in Goa when द ब्रेकर यूज टू बी देयर फ्रेंड. जब वो बच्चे हुआ करते थे तो उनके साथ ये जो पैडर लोग गोवा में उनका दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन एंड गाइड, और उनको गाइड भी करते थे. ही केम टू देयर हाउस ट्वाइस ए डे. ये जो पैडर लोग हैं, इनके घर के आसपास दिन में एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आया करता था. क्यों आया करता था? जैसे एक बार सुबह पारोटी ले लो, पारोटी ले लो, पारोटी ले लो, फट 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 करके बजा के पारोटी ले लो, पारोटी ले लो करते करते एक बार पार हो गया. सब बच्चे लोग उसके पीछे दौड़ते दौड़ते आते हैं. घर के कोई भी हो, अंकल हमको दीजिए, हमको ले, कितने करके इस तरह करके एक बार बेच के चले गए. फिर एक बार कुछ बचे रहते हैं, फिर आते हैं, देखते हैं अगर कोई ले ले, इस तरह आवाज़ करेंगे. ओके. सो वे लोग सोचते हैं इस तरह. ठीक है, समझ रहे ना आप लोग, समझ रहे ना. यस. ही केम वंस इन द मॉर्निंग. एक बार कब आते हैं? एक बार सुबह. वाइल सेलिंग हिज ब्रेड, देखिए लिखा हुआ है. अगेन इन द इवनिंग आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड. मैंने पहले ही बता दिया. ओके. सो द ब्रेकर यूज टू अराइव विथ अ जिंगल साउंड. जिंगल साउंड यही बोलते हैं, फट 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 करके जो आवाज़ होता है उसको जिंगल साउंड बोलते हैं. ऐसे करके बांस का फट 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 फट, पारोटी ले लो, पारोटी ले लो, लाइक दिस. ओके ना. ये एक बैम्बो स्टिक होता है. दैट ओक एवरीवन. ये आवाज़ देगा, फट फट फट, उठो उठो उठो, जागो जागो.